न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भारत पाकिस्तान ने युद्ध किया तो अमेरिका नहीं करेगा समझौता, बोले डोनाल्ड ट्रंप। प्रतिनिधिमंडल ने सियरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद सुहेली को सियरा लियोन के उपमंत्री फ्रांसिस हादिस के लेकर जनसभा स्थल पर पहुंचे शिवन्या से बोले पीएम मोदी। तो खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान ने युद्ध किया तो अमेरिका नहीं करेगा समझौता, बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता करने जा रहा है। मुझे इस पर गर्व है, हम गोलियों के बजाय व्यापार के जरिए परमाणु युद्ध की आशंका को रोकने में सफल रहे। दोनों देशों के बीच युद्ध इतिहास रहा है, हर बार वे दोनों गोलियों के बाद समझौता करने पर राजी हुए हैं, मगर हमने व्यापार के जरिए समझौता करा, इसलिए मुझे इस पर बहुत गर्व है। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत ही खतरनाक संघर्ष चल रहा था, यह बहुत बुरा होता जा रहा था। वे दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, अब हालात ठीक है। लगातार जारी ट्रंप की बयानबाजी के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट कर दिया है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते 22 मई को दो टूक लहजे में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष खत्म करने को लेकर सहमति बनाने में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। दोनों देशों के बीच सहमति सीधी बातचीत की बात बनी। वहीं दूसरी ओर विदेशी छात्रों के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हम यहाँ अच्छे छात्र चाहते हैं, हम सिर्फ ऐसे छात्र नहीं चाहते जो परेशानी पैदा कर रहे हो। हम छात्र चाहते हैं, मैं यहाँ विदेशी छात्र चाहता हूँ। हमारे देश ने हार्वर्ड को बहुत कम समय में 5 बिलियन से ज्यादा दिया है। किसी को यह नहीं पता था, हमें पता चला। मैं यही नहीं कहूँगा कि यह डॉग की बात थी, लेकिन हमें पता चला कि यह ट्रंप की बात थी। हम दूसरे कारणों से मुकदमे में उलझ गए हैं क्योंकि वे बहुत यहूदी विरोधी हैं। Are they still welcome to study in the United States? And one question for Mr. Master. To students, well, we want to have great students here. We just don't want students that are causing trouble. We want to have students. I want to have foreign students. I think Harvard, it's close to 31%. That's a lot. Our country's given $5 billion plus to Harvard over a short period of time. Nobody knew that. We found that out. I wouldn't say that was a Doge thing, but we found that out over a period of time. That was sort of a Trump thing. We ended up in litigation for other reasons because they're very anti-Semitic. And in finding out and in going through the books, we found out that the country gave them $5 billion plus, much more than that actually. And we're having it out with them, and let's see what happens. I think we have a very good, it's a very sad case. It's a case we win. We can't lose that case because we have the right to make grants. We're not going to make any grants like that. But I don't think Harvard's been acting very nicely. I think Columbia wants to get to the bottom of the problem. They've acted very well. And there are other institutions, too, that are acting. But Harvard's trying to be a big shot. And all that happens is every 3 days we find another $100 million that was given. 2 days ago, we found $200 million more. The money's given to them like gravy. I'd like to see the money go to trade schools, where people learn how to fix motors and engines, where people learn how to build rocket ships, because somebody has to build those rocket ships. Yeah. And I'd like to see trade schools set up, because you could take $5 billion plus hundreds of billions more, which is what's spent. Absolutely. And you could have the greatest trade school system anywhere in the world. And that's what we need to build his rockets and robots and things that he's doing, and to build lots of other things. And, I went to school with people. In some cases, they weren't good students, but they could fix the engine of a car better than anybody I've ever seen. They could take it apart blindfolded. They had an ability at that. And they did very well. They made a lot of money. It's a very skilled job. It's great. But I'd like to see a lot of money going into trade schools. I've always felt that. And we probably found our pot of gold, and that's what's been wasted at places like Harvard. And the money's been wasted. What I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. Normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine.
बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्हेद एवं सिएरा लियोन के उपमंत्री फ्रांसिस पी से मुलाकात की। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्हेद जल्लोह से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। हम जानते हैं कि इसका न केवल सुरक्षा पर बल्कि देश की विकास संभावनाओं पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सिएरा लियोन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अफ्रीकी संघ में हमारी स्थिति और OIC का उपयोग करेगा जहां भी हमारे पास मंच होगा, क्योंकि यह न केवल एशिया का बल्कि हमारे पड़ोस का भी मुद्दा है। मैं आपका संदेश देश के राष्ट्रपति तक भी पहुंचाऊंगा जो देश से बाहर है और रविवार को वापस आएंगे। मोहम्मद जुल्हेद जल्लोह ने कहा है। वही शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में समूह 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपमंत्री फ्रांसिस पी अलगाली से मुलाकात की। Like you just said, in the UAC, we condemn outrightly terrorism in whatever shape or form, and we know the devastating impact it has, not only on the security but also on the development prospect of the country. Already, if you look at what is happening in the Sahel today, the whole of West Africa, the Sahel region, all those countries that are within the Sahel band, we talk about Burkina Faso, Niger, Mali, within that area where you still have Algeria and other countries, is being taken over by jihadist movement. And this jihadist movement are creating problems not only for those countries, but they are adding additional pressure to the rest of the West Coast countries. So even at the ECOWAS level, it is something that is really of concern to us. At the ECOWAS level, we have been trying, based on so many supplementary protocols, to see how we can come together to stop the spread, particularly in the Sahel region. So at this stage, what I want to assure you that Sierra Leone will continue to condemn terrorism in whatever form. We are going to use places in the United Nations Security Council, our position in the African Union, and also in the OIC, wherever we have the platform, because it is not only a scourge in Asia, but also in our neighborhood. In our neighborhood, 1 hour flight from here, 1 hour 40-minute flight from here. These countries are suffering under the stress of this kind of scourge, and it is taking a whole toll on this country. And if you have country that is just 1 hour 20-minute flight from here, that are in security, serious insecurity problem, definitely it's impacting us, because these are countries that have trade relationship with Sierra Leone. These are countries that are part of the West African community. These are countries where you have huge development challenges. So today, because of terrorism, these countries, 60% of their national budget are now used on security and defense, instead of building schools, building hospitals, and doing development. So this is not something that we don't know about. This is a scourge that we are familiar with, and this is a scourge that is present in the West African sub-region, and this is a scourge we have been dealing with. So like I said, this is something we are going to add our voice, to it, in whatever platform we are, in whatever space we have got. So I want to assure you that I will deliver your message also to His Excellency the President, who is out of the country. He's coming back on Sunday. I will see him on Monday. I will deliver your message. I will deliver the respect you have brought to us by sending a high-level delegation of this nature to Sierra Leone. This is a very big respect for us, and a very fine way to deliver a strong message. And we rest assured that the document you have given me and the message you have sent, it will be delivered to His Excellency the President. And we are going to sit down as a country also, and then work with the Minister of Foreign Affairs and see what further instruction and message we can send to our permanent representation, not only in the UN, but across the world, wherever they are.
so that they know that we receive a delegation here. We know that this is the issue you brought to us, and this is the issue we are going to transmit to the rest of our embassies. So wherever they are, whatever interaction they do, they know that this is cordial relationship with India. We have a very vibrant diaspora population in Sierra Leone, and they have contributed a lot to the economy and to our relationship with India. So consider yourself at home in Sierra Leone. Yes, we are aware of the matter between India and Pakistan and the recent terrorist attack that happened in April, and we condemn the violence and the loss of life of innocent civilians, not combatants, who were caught up in these unfortunate incidents. And we really want to commiserate with India for that loss. As a non-permanent member of the Security Council, we expressed our concerns as part of the Security Council statement that was put out on the 25th of April regarding that attack in Jammu and Kashmir. We have also conveyed on behalf of the government and the people of Sierra Leone sincere condolences to the victims as well as the government and people of India, and to wish a full recovery of those who were injured in the attack. We, as a country who is part of the multilateral space, we confirm the Charter of the United Nations. We support the Charter of the United Nations, and we support international law and a peaceful solution to conflicts through dialogue. And we continue to support the ceasefire and the de-escalation of tensions between the two countries, and we hope for a peaceful resolution to the situation in Jammu and Kashmir through diplomatic means. We know that certain actions have been taken by both parties. On the 29th of April, our minister also had fruitful discussions with the Foreign Affairs Minister of India, his Indian counterpart, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. Yes, and we hope that now that the situation is a little bit de-escalated, we hope that there would be dialogue in trying to de-escalate the tensions and find a long-lasting solution to this problem. Sierra Leone, through the UN Security Council mechanisms, want to support the international community to reduce the risk of miscalculation, because we all know the power of India as a nuclear nation, as well as Pakistan. So we don't want the situation to lead to a degeneration and a conflict that would affect the whole of Southeast Asia. So anything Sierra Leone can do to de-escalate the situation and maintain peace and security of all peoples in the Southeast Asia, we will do it, and you have
बढ़ते अगली खबर की ओर। हाथ में स्केच लेकर जनसभा स्थल पर पहुंचे शिवन्या से बोले पीएम मोदी। यूपी के कानपुर में शुक्रवार को पीएम मोदी की जनसभा से पहले 11 साल की स्कूली छात्रा शिवन्या तिवारी एक स्केच लेकर जनसभा स्थल पर पहुंची। इस स्केच में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लिखा हुआ था वेलकम टू कानपुर। भाषण के दौरान मोदी ने कहा कि यहाँ एक बच्ची पेंटिंग लेकर आई, एसपीजी के लोगों वो पेंटिंग ले ली। मोदी ने कहा कि आप अपना आता पता उस पेंटिंग पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। इस स्केच में मूल रूप से 3 बातों का जिक्र किया गया है। पहला, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने वाली सोफिया कुरैशी और व्यामिका सिंह का चित्र बनाया गया था। दूसरा, इसमें ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसे स्केच के जरिए दिखाया गया कि किस तरह भारतीय सेना ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। देखिए वीडियो में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, यहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक और विशाल संख्या में पधारे हुए कानपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बच्ची शायद यहां कोई पेंटिंग बना करके जरा एसपीजी के लोग उसे ले ले। उधर भी कोई एक चित्र बना करके लाया है, उस कोने में आप अपना आता पता उस पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। एक उधर कोने में कोई नौजवान है, उसका आता पता लिख लीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये इधर एक बालक कब से हाथ उठा रहा है, तेरे कंधे पर दर्द होगा, आज थक जाओगे। आज कानपुर का उत्साह बड़ा जोरों पर है भाई। उधर कोई जरा फोटोग्राफर उधर देखो, एसपीजी के लोग जरा उस बच्चे को मदद करो। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में
हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में
दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है, वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। साथियों, यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना, ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये तभी होगा जब यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जब कानपुर का पुराना गौरव फिर से लौटेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने आधुनिक उद्योगों की इन जरूरतों को नजरअंदाज करके रखा था। कानपुर से उद्योगों का पलायन होता गया। परिवारवादी सरकारें आंख बंद करके बैठी रही। नतीजा ये हुआ कि केवल कानपुर ही नहीं, पूरा यूपी
पीछे हो गया। भाइयों बहनों, राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए दो सबसे जरूरी शर्तें हैं। पहली, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी बिजली सप्लाई, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। आज यहां 660 मेगावाट के पनकी पावर प्लांट, 660 मेगावाट के नेवेली पावर प्लांट, 1320 मेगावाट के जवाहरपुर पावर प्लांट, 660 मेगावाट के ओबरासी पावर प्लांट, 660 मेगावाट के खुर्जा पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। ये यूपी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इन पावर प्लांट्स के बाद यूपी में बिजली की उपलब्धता और बढ़ेगी। इससे यहां के उद्योगों को भी गति मिलेगी। आज 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कई और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। यहां बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी दिए गए हैं। अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी मदद दी गई है। ये योजनाएं, ये विकास कार्य कानपुर और यूपी की प्रगति के लिए हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। साथियों, आज केंद्र और प्रदेश की सरकार आधुनिक और विकसित यूपी के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएं, जो संसाधन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है, वो सब अब अपने कानपुर में भी दिखने लगी है। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने कानपुर को पहली मेट्रो की सौगात दी थी। अब आज कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन कानपुर सेंट्रल तक पहुंच गई है। पहले एलिवेटेड और अब अंडरग्राउंड, इस तरह का मेट्रो नेटवर्क कानपुर के महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ रहा है। कानपुर मेट्रो का ये विस्तार ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। कानपुर मेट्रो इस बात का सबूत है, अगर सही इरादों, मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकार हो तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे ईमानदारी से प्रयास होते हैं। आप याद करिए, कानपुर के बारे में पहले लोग कैसी कैसी बातें करते थे। चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल, इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके, जगह जगह संकरी सकड़ सड़कों की समस्या, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की कमी। लोग कहते थे यहां कहां मेट्रो जैसे काम हो पाएंगे।
यहां कहां कोई बड़ा बदलाव हो पाएगा। एक तरह से कानपुर और यूपी के दूसरे प्रमुख शहर विकास की दौड़ से बाहर थे। इससे ट्रैफिक की समस्या गहराती रही, शहर की रफ्तार कम होती चली गई। यूपी में सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरे शहर विकास की दौड़ में पिछड़ते गए। लेकिन आज वही कानपुर, वही यूपी विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आप देखिए, मेट्रो सेवाओं से ही कानपुर के लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है। कानपुर व्यापार का इतना बड़ा केंद्र है। मेट्रो के कारण अब हमारे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए नवीन मार्केट और बड़ा चौराहा पहुंचना आसान हो गया है। कानपुर आने जाने वाले लोग, आईआईटी के स्टूडेंट, सामान्य मानवी, इन सब के लिए सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय बचेगा। हम जानते हैं, शहर की गति ही शहर की प्रगति बनती है। ये सुविधाएं, ये कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट की आधुनिक फैसिलिटी आज यूपी के आधुनिक विकास की नई तस्वीर बन रही है। साथियों, आज हमारा यूपी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे निकल रहा है। जिस यूपी की पहचान टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से होती थी, वो अब एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। जिस यूपी में लोग शाम के बाद बाहर जाने से बचते थे, वहां अब हाईवे पर 24 घंटे लोग ट्रेवल करते हैं। यूपी कैसे बदला है, ये कानपुर वालों से बेहतर भला कौन जानता है। कुछ ही दिनों में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ का सफर सिर्फ 40-45 मिनट का होने वाला है। ये बेटी कब से खड़ी है, चित्र लेकर के थक गई होगी। जरा एसपीजी के लोग इस बेटी से वो चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया शानदार चित्र बना के लाई हो आप। देखिए इस बच्ची के कब से थक जाएगी बेटा। वो तुम्हारा नाम पता लिख दिया है बेटा? वो मेरी ऑफिस के लोग आएंगे, अभी ले लेंगे, मुझे पहुंच जाएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, लखनऊ से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्टिविटी भी मिलेगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ जाने के लिए दूरी भी और समय भी बचेगा। साथियों, कानपुर के लोगों को अब तक फर्रुखाबाद, अनवरगंज सेक्शन में सिंगल लाइन से दिक्कत होती रही है। एक दो नहीं, 18 रेलवे क्रॉसिंग से आपको संघर्ष करना पड़ता था। कभी ये फाटक बंद, कभी वो फाटक बंद। आप लोग कब से इस परेशानी से मुक्ति की मांग कर रहे थे। अब यहां भी 1000 करोड़ रुपए खर्च करके एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां ट्रैफिक सुधरेगा,
स्पीड बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, कानपुर के आप लोगों का समय बचेगा। साथियों, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके विश्व स्तरीय लुक दिया जा रहा है। थोड़े ही समय में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह आधुनिक वर्ल्ड क्लास आपको नजर आएगा। हमारी सरकार यूपी के 150 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित कर रही है। यूपी पहले ही देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। यानी हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज, यूपी अब हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम यूपी को औद्योगिक संभावनाओं का राज्य बना रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मेक इन इंडिया के लिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसके तहत लोकल उद्योगों को उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कानपुर जैसे शहरों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप जानते ही हैं, कानपुर के औद्योगिक सामर्थ्य में सबसे बड़ा योगदान यहां की एमएसएमई लघु उद्योगों का होता था। आज हम यहां के लघु उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए काम कर रहे हैं। साथियों, कुछ समय पहले तक हमारी एमएसएमईज को इस तरह परिभाषित किया जाता था कि उन्हें विस्तार करने में भी डर लगता था। हमने उन पुरानी परिभाषाओं को बदला। हमने लघु उद्योगों के टर्नओवर और स्केल की सीमा को बढ़ाया। इस बजट में सरकार ने एक बार फिर एमएसएमई के दायरे को और बढ़ाते हुए उन्हें और भी छूट दी है। पहले के समय में एमएसएमई के सामने बड़ी दिक्कत क्रेडिट की भी होती थी। पिछले 10 वर्षों में हमने क्रेडिट की समस्या को खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। आज युवा अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें मुद्रा योजना के जरिए तुरंत पूंजी मिल जाती है। छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई। इस साल के बजट में एमएसएमई लोन पर गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया। एमएसएमई के लिए 5 लाख तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। हम यहां पर नए उद्योगों, खासकर एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल बना रहे हैं। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल किया जा रहा है। कानपुर के पारंपरिक चमड़ा और होजरी उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। हमारे इन प्रयासों का लाभ कानपुर के साथ साथ यूपी के सभी जिलों को भी मिलेगा। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में निवेश का एक अभूतपूर्व सुरक्षित माहौल बना है। गरीब कल्याण की योजनाओं को पारदर्शिता से जमीन पर उतारा जा रहा है। मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए भी सरकार उनके साथ खड़ी है। इस बजट में हमने 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। इससे करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों में नया विश्वास जगा है, उन्हें नई ताकत मिली है। हम सेवा और विकास के संकल्प के साथ इसी तरह तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम देश को, यूपी को नई ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए
मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं कानपुर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मेरे कानपुर के भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर क्यों यूपीआई गैस सिलेंडर और आधार 1 जून से होंगे 9 बड़े बदलाव। आज यानी शनिवार को मई महीने का आखिरी दिन है। कल से जून 2025 शुरू हो जाएगा। हर महीने की तरह इस बार भी कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर हर परिवार की आर्थिक स्थिति पर होने वाला है। आधार कार्ड से जुड़ा एक अहम बदलाव जून महीने में होने जा रहा है, जो 1 तारीख से नहीं बल्कि 14 जून के बाद लागू होगा। सरकार 1 जून को ईपीएफओ का नया वर्जन ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की योजना बना रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके फायदे और बदलावों के बारे में जानकारी साझा की है। इस नए वर्जन के आने से देश के 9 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को एटीएम के जरिए पीएफ की रकम निकालने की सुविधा मिल सकती है। हर महीने की पहली तारीख को लोगों की निगाहें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव पर टिकी रहती है और यह पहली मई को भी हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में तेल विपणन कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 17 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। वहीं हवाई यात्रियों के लिए 1 जून 2025 को एक अहम बदलाव हो सकता है, जिससे उन्हें राहत या मुश्किल हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुमराह के बर्दाश्त से बाहर हुआ जयवर्धने का ज्ञान, जस्सी हुए कोच से परेशान। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 2 में एंट्री कर ली है। एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई ने गुजरात को 20 रनों से शिकस्त दी। यह एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था, जिसमें लक्ष्य तक गुजरात नहीं पहुंच पाई। मुंबई ने गुजरात के खिलाफ खेलते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 228 का स्कोर बनाया और जीटी 6 विकेट खोकर 220 रन ही बना सकी। एक समय जीटी हावी नजर आ रही थी, लेकिन एमआई का स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह संकटमोचक बन गया। बुमराह ने मुंबई को वाशिंगटन सुंदर का कीमती विकेट दिलाई, जिसके बाद जीटी मैच में पिछड़ने लगी। हालांकि मैच के दौरान बुमराह बाउंड्री पर हेड कोच महिला जयवर्धने के ज्ञान को बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने कोच को अपने अंदाज में समझाया कि टेंशन ना ले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर 29 मई 2025 को मुलनपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेले गए क्वालिफायर 1 मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले आरसीबी ने अपना आखिरी लीग मैच लखनऊ में खेला था। इस मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद एक महिला फैन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसने आरसीबी के न जीतने पर अपने पति को तलाक देने की धमकी दी है। जसप्रीत बुमराह ने पहले कहा था कि ये अपना कार्य मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं हूँ ना, थोड़ा शांत रहिए, मौका दीजिए तो सही। फिर ओवर थमाया गया और विकेट लेके। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुचि गुज्जर ने नरेंद्र मोदी को बताया भगवान कांस में पीएम की तस्वीर का पहना था नहीं। कांस फिल्म फेस्टिवल कुछ दिनों पहले ही संपन्न हुआ। कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई कलाकारों का लुक खूब रहा। जिन्होंने कांस में डेब्यू किया वो भी सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही। पीएम मोदी की तस्वीरों वाला नेकलेस पहनने की वजह से एक्ट्रेस रुचि गुज्जर सुर्खियों में आई थी। होम टाउन राजस्थान पहुंचने के बाद शहर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी बीच उन्होंने पीएम मोदी को भगवान बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कांस 2025 में उन्होंने पीएम मोदी के तस्वीरों वाला नेकलेस क्यों पहना था। रुचि गुज्जर ने कहा है कि पीएम मोदी के रूप में भगवान खुद धरती पर अवतरित हुए। एक्ट्रेस रुचि के मुताबिक पीएम मोदी देश के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ रहा है। ऐसे में उन्होंने दावा किया है कि वह किसी भगवान से कम नहीं। मुझे मुसलमान से प्यार है, साध्वी बनी ममता कुलकर्णी के बयान पर मचा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और वह साध्वी बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तानियों के प्रति उनके प्रेम को लेकर लोग भड़क गए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इसी बीच ममता कुलकर्णी ने बयान दिया है कि मुझे मुसलमानों से प्यार है। उन्होंने यह बताया कि जब वह बॉलीवुड एक्ट्रेस थी तब उन्हें एक दिन में पाकिस्तान से 50 खत मिलते थे। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों और दुबई में मौजूद मुसलमानों से बहुत प्यार मिला है। ममता कुलकर्णी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पाकिस्तानियों के प्रति उन्हें
उनके प्रेम को देखकर भारत के लोग भड़क उठे हैं। ममता कुलकर्णी को सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाई जा रही है। उन्हें अध्यात्म छोड़कर कुरान पढ़ने की सलाह दी जा रही। कहा जा रहा है कि साध्वी बनने का ढोंग उन्हें नहीं करना चाहिए। मुसलमान के प्रति प्रेम है तो उन्हें इस्लाम अपना लेना चाहिए। हाँ, मैंने अपना ऑलरेडी उसके लिए मैंने अपना मैसेज दे दिया है कि देखिए, मुझे मुसलमानों से बहुत प्यार है और उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया। मेरी साधना 25 साल, उसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी, मैंने दुबई में मेरा अपना तप किया था एक स्थान पे बैठ के, तो मुझे शांति मिली है, बहुत प्यार मिला है मुझे। जब मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार थी तो मुझे 50-50 रोज के मुझे पाकिस्तान से खत आते थे। तो मुझे मुसलमान से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे आतंकवादी से प्यार नहीं है, क्योंकि आतंकवादी एक आतंकवादी होता है बस। वो ना किसी का शौहर होता है, ना वो किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र हो सकता है। वो सिर्फ एक आतंकवादी है और आतंकवादी ही होता है वो, बस, वो किसी का नहीं होता। बढ़ती अगली खबर की ओर। अमेरिका में स्टील के आयात पर बड़ा झटका, ट्रंप ने 2 गुना किया टैरिफ। अमेरिका के सत्ता में आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से दुनिया भर में तहलका मचा रखा। अब उन्होंने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ 2 गुना कर दिया है। अब यह टैरिफ 25% से बढ़कर 50% हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की स्टील कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। उनका यह फैसला 4 जून से लागू होने वाला है। जाहिर सी बात है कि इससे स्टील से बने उत्पादों जैसे कि कार के रेट में इजाफा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में चीन की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका का भविष्य शंघाई के कमजोर स्टील पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि पीटर्सबर्ग की ताकत और मजबूती पर आधारित होगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें चिंता थी कि मॉन वैली में स्टील से जुड़ी 3000 नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा और उन्होंने उस वादे को पूरा भी किया। ट्रंप ने अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जिससे शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ उगला जहर, उसका केरल के लोगों ने किया भव्य स्वागत। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पहलगाम हमले के बाद भारत के खिलाफ हर समय जहर उगला था। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वह लगातार अपने मुल्क का बचाव करते हुए भारत के खिलाफ फालतू बातें कर रहे थे। ऐसे में अब भारत के केरल के एक समुदाय ने दुबई में उनका ऐसा स्वागत किया मानो वह कोई बेहद खास इंसान है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही अफरीदी मंच पर पहुंचे, कार्यक्रम की सांस्कृतिक प्रस्तुति रोक दी गई और वहां मौजूद लोगों ने बूम बूम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। मंच पर अफरीदी ने कहा है कि उन्हें भारत, खास तौर पर केरल और वहां का खाना बहुत पसंद है। उन्होंने मजाक में कहा, हो गया बूम। Really no. I think Cuba is lucky to have Gus here. I need a keynote to say anything. They will speak. They are very happy to see an Indian Malayali crowd here, so that is the reason I'm here from here. Just a second. No more boom boom, old boom boom. अच्छा, मैं आप लोगों के नहीं आप लोग मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूँ कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और केरला के लोग मुझे I respect them a lot because इतने प्यार से, इतनी इज्जत से मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं तो कभी बार यूट्यूब पे केरला की
वीडियोस देखते हो, खाने नहीं बनते थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छा लगा आप सबका कि पाकिस्तान एसोसिएशन के अंदर आप लोग सारे आए हैं और हम लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन ग्राउंड से बाहर हम सब एक ही इंसान हैं। थैंक यू सो मच। बढ़ते अगली खबर की ओर। मिस वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड का तड़का लगाएंगे ईशान और जैक। भारत के हैदराबाद शहर में आयोजित हो रही 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 31 मई को इसका ग्रैंड फिनाले हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में बड़े ही भव्य अंदाज में आयोजित किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में जहां दुनिया भर की सुंदरियां हिस्सा ले रही है, वहीं भारत ने इसे सांस्कृतिक और मनोरंजन का अद्भुत संगम बना दिया है। फिनाले इवेंट की मेजबानी करेंगी मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वैले और भारतीय होस्ट सचिन कुमार। कार्यक्रम में बॉलीवुड का जबरदस्त तड़का भी देखने को मिलेगा। अभिनेता ईशान खट्टर और अभिनेत्री जैकलिन अपनी लाइव परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतने को तैयार है। दोनों सितारों की धमाकेदार प्रस्तुति कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होगी। इवेंट में मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर भी विशेष मेहमान के रूप में मौजूद रहेंगी। मिस वर्ल्ड के इस संस्करण में 108 देशों की प्रतियोगिता ने हिस्सा लिया है और तेलंगाना की संस्कृति, विरासत और मेहमानवाजी को दुनिया के सामने खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्तार का बेटा दोषी करार, थोड़ी देर में होगा सजा का ऐलान। मऊ सदर के विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नेता अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब से कुछ ही देर में मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। इस फैसले का असर अब्बास अंसारी के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उनका विधायक पद भी खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दें कि यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में अधिकारियों को सरकार बनने पर उनका ठीक से ख्याल रखना की धमकी दी थी। अधिकारियों को सरकार बनने पर उनका ठीक से ख्याल रखना
की धमकी दी थी। इस भड़काऊ बयान का विरोध हुआ था और मऊ कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता की निम्न 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन धाराओं के तहत दर्ज मामले की सुनवाई मऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर केपी सिंह की अदालत में चल रही थी, जिन्होंने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। साइड हो थोड़ा सा, साइड होके बनाओ यार, एक साइड होती सब लोग। हट जा भाई, इनको भी आइए यार, तुम पीछे हट जाओ, बना ले, हट जाओ। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुणे में बस से यात्रा करना होगा महंगा। पीएमपी में यात्रा करना रविवार से यात्रियों के लिए महंगा हो जाएगा। पुणे क्षेत्रीय परिवहन समिति ने पीएमपी प्रशासन द्वारा भेजे गए किराया वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किराया वृद्धि 1 जून से लागू होगी। वहीं वसई विरार नगर निगम ने बस यात्रा में महिलाओं को 50% रियायत देने का फैसला किया है। पुणे क्षेत्रीय परिवहन समिति 11 साल बाद पीएमपी टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। मौजूदा टिकट की कीमत दोगुनी होने से यात्रियों ने नाराजगी जताई। पीएमपी बसें पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और पीएमआरडीए क्षेत्रों में चलती हैं। पीएमपी 1 से 80 किलोमीटर तक संबंधित रूट पर यात्रा करती है। पीएमपीए ने 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए 11 चरण तय किए हैं। उस चरण के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। ये दरें रविवार सुबह से लागू होंगी। पीएमपी ने टिकट के साथ पास का किराया भी बढ़ा दिया है। पीएमपी प्रशासन ने इससे पहले 2014 में किराया वृद्धि लागू की। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में बड़ा हमला। भारत के मिसाइल हमले के साथ ही पाकिस्तान सेना के बुरे दिन शुरू हो गए। अब बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोहियों ने भी पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला बोला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला करके सैन्य वाहन को उड़ा दिया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोलन घाटी के मचकुंड के पास हमले को अंजाम दिया है। बोलन घाटी वही इलाका है जहां इसी साल मार्च में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तानी सेना को ट्रेन को छुड़ाने में 36 घंटे से ज्यादा समय लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जवाब गश्ती अभियान पर थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विशेष सामरिक ऑपरेशन दस्ते ने रिमोट कंट्रोल आईडी विस्फोट के जरिए जवानों से भरे वाहन को निशाना बनाया।
चला दर्शकों, ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।